काफी मशक्कत और ढूंढने के बाद I could find only Konkani Muslim restaurant in the district of Thane near Mumbai, and I did receive the traditional Konkani hospitality and generosity. The Dastarkhan was laid out for me in its full splendor. हल्दोनी या कलसनी जिसको यहाँ पर कहा जाता है, that already existed, Okay. but in a slightly different shape and form. Predominant difference है कि कोरमे के अंदर प्याज का बेरिस्ता या फ्राइड अनियंस का पेस्ट डाला जाता है, along with it कर्ड्स या दही डाला जाता है, और उसके साथ में कोई भी एक नट का पाउडर डाला जाता है, which predominantly is either almond or cashew. Okay. Now cut to हल्दोनी जैसा टिपिकली बनाई जाती है, and there are regional influences within. उसके अंदर the curd goes away and gets replaced with coconut in two forms. One is the thick coconut milk and the second extract of the milk. The cashew gets replaced with peanut. Okay. तो हम peanut powder का इस्तेमाल हल्दोनी के अंदर करते हैं. Okay. जो बेस होता है fried onions का, that gets replaced with onions. कुछ लोग tomatoes भी ऐड करते हैं to give body to the dish. In the haldoni, there is the rice flour slurry, which is used as a thickening agent. Got so it. texture में वो बहुत करीब है कोरमे के, flavor में there is a variation. Okay. So there is the fish haldoni. Okay. The fish that we use here is called as dara. In English, it's called threadfin. It's of the family of the Indian salmon or ravas. So हम this ravas is नहीं popular खाते. on Konkan coast? Extremely popular, predominantly in affluent Konkani households. Ah, very flaky. Very flaky और बहुत इसको इसे उर्दू में कहते हैं, बहुत नफीस मछली मानी जाती है. तो इसके अंदर you will not have any fishy smell. Very It's a nice. brilliant fish, yes. Whenever the haldoni is made using fish, the consistency is slightly thinner compared to prawns. Okay. What you see here is a similar preparation, which is the prawns haldoni, which has the coconut milk. Okay. The third dish that you have on the table is also a prawns haldoni without the coconut. Wow. Very tasty. Thank you. So if you go towards the east coast, right, which is farther away from the shore, accessibility and availability to coconut थोड़ी limited हो जाती है. अच्छा. तो नहीं होने की वजह से इसके अंदर कोकोनट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बाकी ingredients वही होते हैं. What I find really interesting is जो मैंने prawn हल्दोनी खाया है, दोनों के अंदर एक particular मसाले का flavor है, which I'm not able to identify, but I'm very sure it's a very typical Konkani Muslim masala. Am I correct? You are absolutely correct. So उस मसाले का कोई नाम है? उस That मसाले flavors का this नाम है curry? फिक्का मसाला. फिक्का. Phikka. Now the Urdu word phika, when it comes closer to Marathi and it becomes Konkani, it becomes phikka. The But syllable बड़ा ही stretch. tasty मसाला है. So how can it be फिक्का? Why would somebody name something फिक्का which is so tasty? But डाला जाता है कभी भी. और सौंफ coriander. और धनिया का predominant flavor है. I'm very pleasantly surprised and happy that ये जो हल्दोनी है, जो ट्रेडिशनल बरिस्ता वाला फ्लेवर जो मैं सोच रहा था कोरमा हल्दोनी सिमिलर जोन में होंगे, वो बिल्कुल हटके है. जो रेस्टोरेंट में मिलता है कोंकणी मुस्लिम खाना वर्सेस जो घर पर बनता है, इज देयर अ डिफरेंस? There is. जब घरों में हम बनाते हैं इसके अंदर, तो कोकोनट इन टू फॉर्म्स इज व्हाट वी यूज. उसके अंदर हम जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है कोकोनट मिल्क का वो डालते हैं, और जस्ट बिफोर द फाइनल सिमर उस वक्त हम सेकंड एक्सट्रैक्ट डालते हैं. ओके. Another secret behind the haldoni, which makes it so delicious and special, is that इसके अंदर पानी का इस्तेमाल हम नहीं करते. अच्छा. इसके अंदर हम स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं. फिश स्टॉक. So जब फिश हल्दोनी बनती है तो उसके Fish अंदर जो stock. फिश हेड Head. या फिश बोन्स होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता Prawn है. shells. Prawn shells, exactly. use of prawn shell in a prawn dish and fish bones in a fish dish, ये आई फील बड़ा ही एक मॉडर्न टेक्निक है. ये हमेशा से हमारे यहाँ होता आ रहा है. Oh. रेस्टोरेंट के अंदर हम स्टॉक नहीं यूज करते और हम उसकी जगह पर वाटर यूज करते हैं. What's this? This is something which is very very unique and typical to Konkani Muslim households. It is called the sandan. तो historically अगर आप इसका origin trace करें, तो जब भी लड़की की विदाई के बाद में groom आता था अपनी ब्राइड को लेने के लिए, तो ब्राइड के घर वाले उसको उसका दिल जीतने के लिए उसके सामने सांदम बनाते थे. तो इसके अंदर राइस फ्लावर के साथ में राइस रवा होता है, कोकोनट मिल्क, बिकॉज दैट हैज टू बी देयर, और इसको ओवरनाइट रखा जाता है और इसको स्टीम किया जाता है. एक्सट्रीमली हेल्दी. तो ये खाते किसके साथ है? इसको सवेरे आप ब्रेकफास्ट में बालाई के साथ खाते हैं. आप इसको कोई भी तीखे हल्दोनी या सालन के साथ खाते हैं. तो हल्दोनी सालन के साथ जाता है. इसको जाता है. एंड आई लाइक दैट कि इतना सैफरन और नट्स है. क्लियरली इट्स अ वेरी अरब इन्फ्लुएंस इफ आई कैन से. एब्सोल्युटली. वेरी नाइस.
It's a brilliant bread. Very unique. मतलब इस करी के अंदर चार चांद लगा दिए इस ब्रेड ने. Korma, when got adopted by locals in Konkan, got popular as Haldauni. तो मैं निकल पड़ा रीजनल फूड ब्लॉगर सेहर खानजादा से मिलने, जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट lineages of the हल्दौनी. सो जो आप यहाँ देख रहे हैं इसे हम अटौनी कहते हैं. अटौनी. अटौनी. Okay. अटौनी इसलिए कहते हैं क्योंकि आटून घेतलेला, मतलब उसको सुखाया जाता है और ज्यादा पानी भी यूज नहीं है. तो आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी ग्रेवी की कितनी थिक है. इनफैक्ट इससे और थिक भी हो सकता है अटौनी. अच्छा. सो मतलब ड्राई टू ऑलमोस्ट ड्राई. यस. और कोरमा? कोरमा प्रॉन्स का ज्यादातर बनता है अगर सी फूड में बनाया गया तो. बट इसमें किसी भी तरह का मिल्क प्रोडक्ट नहीं यूज किया गया. मतलब दही नहीं है इसमें? जी बिल्कुल दही नहीं है. कोरमा में और एक एडिशन ये है कि इसमें प्याज टमाटर पड़ते हैं. जिंजर गार्लिक पेस्ट इज अ वेरिएशन, इसमें जिंजर नहीं पड़ता है. चावल तो खाए ही जाते हैं बट चावल की रोटी भी खाई जाती है, जिसे हम सावराची रोटी कहते हैं. हम 5 डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं कोकनी मुस्लिम्स. मुंबई से शुरू होकर थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक. तो जैसे जैसे रीजन मूव होता है थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाते हैं, प्रेपरेशंस चेंज हो जाते हैं. मॉम उस एरिया से है जो थोड़ी इनलैंड है, तो उनके साइड की जो क्विजीन है उधर अक्सर ड्राई कोकोनट पेस्ट यूज होते हैं. डैड इज फ्रॉम अ कोस्टल एरिया, तो उनके यहाँ तो हर चीज में कोकोनट पड़ता है. आज जो ये चावल देख रहे हैं अगर ये डैड साइड पे बनेंगे तो ये पानी में नहीं बनेंगे, ये थिन कोकोनट मिल्क में बनेंगे. अच्छा. तो सी फूड, राइस एंड कोकोनट आर इंडिस्पेंसिबल टू कोकनी क्विजीन. डिपेंडिंग आप इनलैंड हो या कोस्टल हो, आप कौन सा कोकोनट यूज करते हो और किस चीज में यूज करते हो, खाली वो चेंज होता है. ओके. और कोई पर्टिकुलर सारिंग एजेंट है? तो यहाँ हमने इन 2 डिश में 2 अलग सारिंग एजेंट्स यूज किए हैं. ये क्या है? मैंगो है? ये रॉ मैंगो है जिसको सॉल्ट करके ड्राई किया हुआ है एंड दैट इज यूज्ड एज अ सारिंग एजेंट. ओके. ये इसकी गुठली भी है? जी. तो गुठली को ही नमक लगा के सुखाया जाता है. अच्छा. कोरमे में इमली है, अटौनी में अम्बोशी है. तो ये जो फिश अटौनी है, जी. जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आई कैन टेस्ट चिली, आई कैन टेस्ट गार्लिक. खट्टा है बिकॉज ऑफ द रॉ मैंगो. वेरी नाइस. इट्स वेरी वेरी गुड. इसको जो टेस्ट में इसमें धनिया का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है. जी जी. वेरी डिफरेंट. जी. आई क्वाइट लाइक द फैक्ट कि इन कोरमास में या हल्दौनी और अटौनी के अंदर देयर इज अ वास्ट डिफरेंस ऑफ टेस्ट एंड इंग्रेडिएंट्स, जहां इसके जो इंग्रेडिएंट्स है इससे बिल्कुल मैच नहीं होते. सो व्हाट यू गेट इज अ वेरिएशन ऑफ करीज. जी बिल्कुल. Our food may have taken a lot of influences from outside, but it's not that we were not cooking before that. The Haldoni is the testimony to the above. जहां से शायद प्रॉन कोरमा इवॉल्व हुआ है या इन्फ्लुएंस हुआ है. और गजब की बात है कि इट कोएग्जिस्ट टिल डेट. That's why some curries can be different to others because some adapt and evolve while some keep it pure. Curries definitely give space to all our creative culinary expressions.